اور اب خبریں تفصیل سے۔ پولیس نے سری نگر میں ٹی آر ایف کے ایک ماڈیول کا پردہ فاش کیا ہے۔ ڈی آئی جی سینٹرل کشمیر سجیت کمار نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ماڈیول ہائیبرڈ ملیٹنٹ چلا رہے تھے جن کی سرپرستی پاکستان اور سعودی عرب سے ہو رہی تھی۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ کشمیری باشندے جو سعودیہ اور پاکستان میں مقیم ہیں اپنے ٹارگٹ کا انتخاب کرتے ہوئے ہلاکتوں کے لیے فنڈ اور ہتھیار فراہم کر رہے تھے۔ پولیس نے اس ضمن میں 4 گرفتاریاں عمل میں لائی ہیں۔ پولیس کے مطابق ٹی آر ایف کے 2 ملیٹنٹ ترال پلوامہ کے سہیل قادر کھانڈے اور نکلورا پلوامہ کے سہیل مشتاق وازا کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ 2 او جی ڈبلیوز باسط بلال اور عماد نصر کی گرفتاری ہوئی ہے۔ During the questioning, the arrested terrorists disclosed that they were operating in the Srinagar city on the directions of one person, namely Asif Makbul Dar, resident of MIG Colony, Babina, at present Dhamam, Saudi Arabia, and Mr. Sajjad Gul, resident of HMT Parimpura, at present Pakistan. Both the handlers from Saudi Arabia and Pakistan were providing weapons and money through a network of OGWs that is being identified. This module has also done recce of security installations like NIA office at Delhi, Delhi Police Headquarters, etc., and shared same with their handlers in Pakistan. As per the investigation, the targets in city for killings were also selected and conveyed to them by Dr. Asif and Mr. Sajjad Gul. Suhail Qadir Khande was working in Saudi Arabia with Dr. Asif Dar, and in August 2021, on the directions of Dr. Asif, he came back and started working as an operative of TRF and MGF for coordinating the collection of arms, ammunition, money and terror attacks in Srinagar city. ضلع سامبا میں سرحدی علاقے کے گاؤں سجانا میں لوگوں کو پی آئی اے کا نشان زدہ غبارہ نظر آیا، جس کے بعد لوگوں نے مقامی پولیس کو اس کی جانکاری دی۔ سامبا پولیس نے موقع پر جا کر غبارے کو اپنے قبضے میں لیا۔ اس سے قبل بھی علاقے میں کئی مرتبہ ایسے غبارے نظر آئے جن پر پی آئی اے کا مارک لگا ہوا تھا۔ پونچھ کے میندھر سب ڈویژن کے ایل او سی پر کرشنا گھاٹی سیکٹر کے بالونی میں ایک فوجی جوان کی مشکوک حالت میں گولی لگنے سے موت ہو گئی ہے۔ مہلوک جوان کی شناخت انیل چوہان اتراکھنڈ کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ لاش کو دیر شام سب ڈسٹرکٹ اسپتال میندھر منتقل کیا گیا۔ قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو دوبارہ فوج کے حوالے کیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ حکومت نے جموں کشمیر کے 4 سابق وزراء اعلیٰ کی سیکیورٹی میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی اور غلام نبی آزاد کی سیکیورٹی کم کی جا رہی ہے۔ ان لیڈروں کو تحفظ فراہم کر رہی اسپیشل سیکیورٹی گروپ کے اہلکاروں کی تعداد کم کی جائے گی۔ سیکیورٹی ریویو کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ عمر عبداللہ نے سیکیورٹی کم کرنے کے فیصلے کو سیاسی قرار دیا اور کہا کہ انہیں اس حوالے سے کوئی جانکاری نہیں دی گئی۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ ہم کن حالات میں رہ رہے ہیں۔ پی ڈی پی صدر نے کہا کہ پنجاب میں وزیر اعظم کی سیکیورٹی معاملے کو کس طرح اجاگر کیا گیا اور یہاں کشمیر میں ہماری سیکیورٹی کم کی جا رہی ہے۔ اب ان 4 سابق وزراء اعلیٰ کو ان کے سیکیورٹی زمرے کے تحت جموں کشمیر پولیس کی سیکیورٹی ونگ تحفظ فراہم کرے گی۔ متحدہ عرب امارات کے لولو گروپ نے جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ دبئی میں ایل جی منوج سنہا کی موجودگی میں جموں کشمیر حکومت اور لولو گروپ کے بیچ ایک ایم او یو پر دستخط کیے گئے۔ لولو گروپ کی جانب سے سری نگر میں فوڈ پروسیسنگ اور ہائپر مارکیٹ قائم کی جائے گی۔ تقریباً 400 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ دبئی میں کشمیر پروموشن ویک بھی لانچ کیا گیا۔ ضلع رامبن کے کئی مقامات پر مٹی کے تودے گرنے سے جموں سری نگر قومی شاہراہ ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند ہے۔
मौसम में आई बेहतरी के बाद तामीराती कंपनी की जानिब से शाहराह की बहाली का काम शुरू किया गया है, जिसके बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सिर्फ दरमांदा मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। काजीगुंड और झकेनी उधमपुर में दरमांदा मुसाफिर बरदार गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। हुकूमत की जानिब से बेइंतहा पैसा खर्च करने के बावजूद ज़मीनी सतह पर तस्वीर के अबतर होने पर कांग्रेस लीडर व साबिक़ रुकन असम्बली रामबन अशोक कुमार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की सर्वे में बार बार तब्दीली निजी तामीराती कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। साल 2019 में मुकम्मल होने वाला कौमी शाहराह का 4 लेन प्रोजेक्ट अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। कटरा से कश्मीर के लिए जा रहा था, सुबह निकला था सर। एक्चुअली क्या है, रोड बंद थी, रोड की वजह से परेशानी कश्मीर को टूरिस्ट को भी हो रही है और सबको हो रही है। अब क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि रोड जल्दी से जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। ये किसी को परेशानी, जो बाहर से बेचारे इतने दूर से आते हैं तो उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरासर ट्रांसपेरेंसी नहीं देखी गई, करप्शन हुई है, सरासर करप्शन हुई है। और लोग अपने करोड़ों रुपए कमा के, ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, मजे से बैठ गए हैं, अपने मजे से घरों में नींद कर रहे हैं और हमारे गरीब लोग यहाँ मारे जा रहे हैं। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो रामबन हो, चाहे वो जम्मू हो, श्रीनगर हो, चाहे दूसरी जगह हो, हमारे जो है लोग मारे जा रहे हैं। उनका कसूर क्या है, ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से। इन लोगों का क्या कसूर है, क्यों इनको मारा जा रहा है, क्यों डेथ ट्रैप बनाया जा रहा है इस नेशनल हाईवे को। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में भी है, स्टेट में भी, करोड़ों अरबों रुपए आप लोग खर्च कर रहे हैं इस रोड पे, करोड़ों अरबों रुपए आपने ठेकेदारों के हवाले कर रखे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के हवाले। तो इसका कोई मेजर क्यों नहीं लेते आप, इसका प्रोटेक्शन क्यों नहीं करते इसका, और जल्दी से जल्दी इसका प्रोटेक्शन करिए। यही अपील की जाती है कि वो जम्मू श्रीनगर पर कौमी शाहराह पर सफ़र करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से बात करें और वो सड़क की हालत जानने के बाद ही शाहराह पर सफ़र करें और आने वाले दिनों में एमरजेंसी सूरत हाल के अलावा सफ़र करने से गुरेज करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद रहने से दरमांदा मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगरचे पहले ही ट्रैफिक हुकाम ने आज कौमी शाहराह के बंद रहने की इतला दी थी, लेकिन इसके बावजूद काजीगुंड के करीब दिन भर मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद जम्मू जाने की कोशिश में नजर आई। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की इतला के मुताबिक कल सिर्फ छोटी गाड़ियों को मौसम की बेहतरी की सूरत में दो तरफा चलने की इजाजत होगी। बड़ी और मालबरदार गाड़ियों को सिर्फ कश्मीर से जम्मू चलने की इजाजत होगी। मैं जींद हरियाणा से हूँ, कल से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। कोई मदद नहीं मिली प्रशासन की, मतलब यहाँ के लोग थोड़ी मदद कर रहे हैं और बहुत तकलीफ हो रही है हमें, मतलब यहाँ पे फंसे हुए हैं और घर जाना है। क्या चाहते हैं आप, रास्ता खुले जल्दी से जल्दी खुले, प्रशासन मदद करे हमारी। बहुत दिक्कत है यहाँ पे, कहाँ जाए, यहाँ से सामने घर है। सरकार को ये कहना चाहते हैं हम यहाँ छोटी मोटी टॉयलेट थी वो बनाए हमारे लिए। 3 दिन से खड़े हैं इधर और ये रास्ता रोक रखा है 3 दिन से कानवे में लगे। तो वही है ना, हमारे को छोटे तो अब आगे जाए ना, इधर कोई सुविधा है खाने की है ना कोई पीने की है। काजीगुंड 4 लेन टनल से हर मौसम में ट्रैफिक को चलाए रखने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दावा इस मौसम की पहली बर्फबारी ने गलत साबित किया। 4 लेन टनल और इसकी रसाई के लिए कई किलोमीटर तवील फ्लाईओवर की देखरेख के लिए जिम्मेदार कंपनी टनल के बाहर सड़क से बर्फ साफ करके ट्रैफिक को बहाल रखने में नाकाम रही है। कल रात टोल प्लाजा बानिहाल और 4 लेन टनल के दरमियान सड़क पर कई इंच की बर्फबारी के बाद पैदा हुई फिसलन की वजह से कल रामबन हादसे के महलूक नौजवान की लाश को लेकर एम्बुलेंस और सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों को रात भर 4 लेन टनल के आर पार ठिठरती सर्दी में दरमांदा रहना पड़ा। पुलिस हुकाम ने फोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि आज सुबह 4 बजे से 4 लेन टनल के दोनों तरफ दरमांदा ट्रैफिक को बहाल किया गया है। बड़ी उम्मीदें थे, जो टनल बन गया इससे बड़ी उम्मीदें थी कि बर्फ पड़े, कुछ भी पड़े, रास्ता खुला रहेगा। ये देखने को आया कल कि जो एम्बुलेंस से हमारी थी बनहाल की, वो भी फंस गई, तकरीबन 3-3, 4-4 घंटे वो भी फंसी। तो वो तो लापरवाही है नवयुगा की, उनके पास मशीनरी नहीं है। ये तो 3 इंच बर्फ पड़ी अभी तो 3 इंच पड़ी, अगर पहले हिसाब से 2-3
फुट पड़ेंगे तो ये क्या करेंगे? बानीहाल नवयुगा टनल जो हमारा सेक्टर लगभग 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर का पड़ता है, उसमें 4 से लेकर 5 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। लेकिन नवयुगा टनल जो इस वक्त मेंटेनेंस का काम देखती है, उनके पास वो वैसी कोई मशीनरी स्नो कटर मौजूद नहीं था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। 2 बार वहाँ पर एम्बुलेंस जो इंजर्ड रामन हादसे में थी, उस 108 को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टंगमर से गुलमर्ग जाने वाली राब्ता सड़क पर बर्फबारी की वजह से फिसलन पैदा हो गई है। गुलमर्ग हाईवे पर कई गाड़ियां फिसलन की वजह से फंस गई। टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ियां फंस गई हैं। इन गाड़ियों को फिर मशीनों के जरिए निकालना पड़ा। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत की कि गुलमर्ग हाईवे पर मैकडम बिछाने के बाद सड़क के एक तरफ हिफाजती दीवार नहीं बनाई गई है। इसके बाद हादसा पेश आने का खतरा लाहक हो गया है। उधर इंतजामिया ने कहा कि गाड़ियों के टायर पर लोहे की जंजीर बांधकर ही गुलमर्ग जाएं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज भी विजिबिलिटी कम होने की वजह से तमाम परवाजें ताखीर से चल रही हैं। ताहम गुज़श्ता रोज के मुकाबले विजिबिलिटी ठीक हो गई है, जिसके बाद फजाई सरगर्मियां बहाल हुई। आज दिन में अब तक श्रीनगर एयरपोर्ट पर 30 के करीब परवाजें चली, जिनमें कई परवाजों ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और कई परवाजों ने ताखीर के साथ उड़ान भरी। श्रीनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने इन बातों की जानकारी हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन को फोन के जरिए दी। उन्होंने कहा कि अभी मौसम ठीक है और परवाजों का सिलसिला जारी है। उनका कहना था कि आने वाले अप्रैल के महीने में श्रीनगर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी के लिए इक़दाम किए जाएंगे और नवंबर 2022 तक वो सिलसिला तैयार हो जाएगा, जिसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर परवाजों को उड़ान भरने के लिए 500 मीटर्स की विजिबिलिटी काफ़ी होगी। शहर आफाक रिजॉर्ट सोनमर्ग में सियाहती सनत से जुड़े दरमानदा होटल वालों और ताजिरों को डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की सख्त कोशिशों के बाद वहां से निकाला गया, जो स्टेशन हाउस अफसर के साथ बर्फानी तोदे गिरने के खदशे के तहत वहां पहुंचे थे। सियाहती मकाम पर भारी बर्फबारी की वजह से होटल वाले और ताजिर फंस गए थे। रिजॉर्ट में वक्फे से होने वाली बर्फबारी के बाद 4 फुट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई, जिससे बिजली पानी की सप्लाई मुतासर हुई और गगनगिर से सड़क की रसाई मुतासर हुई। दरमानदा अफराद ने जिला इंतजामिया तक जानकारी फराहम करने पर न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। शदीद बर्फबारी की पेशगोई के पेश नज़र श्रीनगर ले शाहराह को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया। सोनमर्ग में जो हेवी स्नोफॉल हुआ था, जो वीडियो अपलोड हुआ था, उसी कल हमें बहुत ही हेल्प किया कि हमारी उस आवाज़ को उन्होंने अपनी न्यूज़ प्लॉट में जगह दी है। तो जिस वजह से सरकार एकदम एक्शन में आ गई। उन्होंने टनल वालों से अपना राब्ता कायम किया और टनल वालों को उन्होंने मजबूर कर दिया इस पे कि उन्होंने हमें फिर फाइनली कल शाम को एक्सेस दे दिया अपने टनल से, ताकि उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और हम गगनगिर आए और गगनगिर से हम सेफली अपने घर पहुँचे। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर मैं अपने CO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। SDM कंगन उन्होंने एक्शन ली थी इमीडिएटली। SDPO कंगन वो इमीडिएटली सोनमर्ग पहुँच गया। PMGSY महकमे ने बर्फबारी के दौरान त्राजन वेरेनाग में एक हामिला खातून को अस्पताल बर वक्त पहुंचाकर जच्चा बच्चा की जान बचा ली। यह खातून बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद होने के बाद अपने ही घर में फंस गई थी, जिसके बाद इंतजामिया ने फौरी हरकत में आकर PMGSY को मुतले किया। बाद में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीर मोहम्मद सुल्तान की निगरानी में मज़कूरा खातून को घर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। और नाज़रीन, बर्फबारी और इससे पैदाशुदा सूरत हाल पर मजीद खबरें बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में कल कोविड मुस्बत मामलों में इजाफे के बाद इंतजामिया ने रात के औकात में नकलो हमल पर तहदीदात लगाई हैं। माहिरीन को अंदेशा है कि यूटी में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हुआ है। मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट प्रोफेसर नजीर नवेद का कहना है कि यूटी में इन मामलों में कड़ी नजर रखने की जरूरत है, लेकिन कोविड नमूनों की जीनियाती तज्जिए में काफी देर लग रही है। प्रोफेसर नवेद ने ताज़ा सूरत हाल पर न्यूज़ 18 के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद से बात की।
ओमिक्रॉन पहले से जम्मू कश्मीर में उसकी मौजूदगी दर्ज की गई है और उसके तनाजुर में कल जो उछाल दर्ज की गई, इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे मुल्क की अगर हम बात करें, जो हमारे स्पेशली मेट्रोज़ हैं जहाँ पे लोगों का आमद-ओ-रफ्त काफ़ी ज़्यादा रहता है, वहाँ पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ़्ते से एक्सपोनेंशियली हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो बढ़ रहे हैं। ये इसका रीज़न तो मेन ओमिक्रॉन ही है, बिकॉज ये जो वेरिएंट है हमारा, इसका हालांकि सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ बहुत कम होती है, लेकिन इसका इन्फेक्टिविटी पावर बहुत ज़्यादा है। कश्मीर से जो भी अभी तक सैम्पलिंग्स गई हैं, मेरे ख्याल में अभी तक उनके रिजल्ट्स नहीं आए, तो अभी तक जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसमें से अभी तक हमारे कोई ऐसा ओमिक्रॉन का कोई केस कंफर्म पॉजिटिव नहीं पाया गया। जो जम्मू में हमने ओमिक्रॉन के 3 केस देखे गालिबन, तीनों की जो मुझे पता है कि तीनों की कोई बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। मतलब क्या बनता है इसका कि वो जो ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं वो जम्मू से थे? अगर वो उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या किसी कांटेक्ट ऐसे से नहीं हुआ है जो बाहर से आया है, तो हम ये इन्फर कर सकते थे कि ये हमारी कम्युनिटी में आ गया है ये ओमिक्रॉन। और ये तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। देखिए, जब वेव आती है तो वो किसी न किसी तरीके से तो यहाँ पे भी ओमिक्रॉन के केसेस आज नहीं तो कल, एक हफ्ते बाद वो तो आएंगे ही। लेकिन हमारे मौके का तकाजा यही है कि हम स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर करें और सेकंड जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पर अमल करें। पिछली वेव्स में भी हमने देखा कि जो ही हमारे केसेस बाहर बढ़े हैं, कश्मीर की बात अगर हम करें तो वो थोड़ा सा डिले रहा है। तो इस टाइम हम देख रहे हैं कि बाकी मुल्क में नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो वो हम भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे जाके यहाँ पे भी ऐसी ही संभावना है। मतलब ये पिछली बार हमने देखा था कि फरवरी के आसपास हम सेकेंड वेव में थे, क्या ऐसा हो सकता है ये सूरत हाल फिर से थर्ड वेव की फरवरी के आसपास यहाँ हो सकती है कि जिस तरह के केस बढ़ रहे हैं? करीब करीब 200 के अंडर हमारे केसेस आ रहे थे। कल का जो डाटा है जो रिलीज़ हुआ है उसमें हमारे 400 केसेस आए, बट ये 200 के जो एक्स्ट्रा नंबर है ये एक पर्टिकुलर एरिया से ही पाए गए हैं। तो बिल्कुल, तो इसमें आगे एक्सपेक्टेड है क्योंकि लोग आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, टूरिस्ट भी आ रहे हैं या बाकी ट्रैवलर्स भी हैं, तो हमें अंदेशा है कि आगे जाके यहाँ पे भी हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो बढ़ेंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग हम करते हैं, बहुत वक्त लगता है इसमें। देखिए, बिल्कुल, जो हम यहाँ पे रैपिड टेस्ट करें या RT-PCR टेस्ट करें उससे हमें वेरिएंट का पता नहीं चलता है। उसमें खाली हमें ये पता चलता है कि ये कोविड का इन्फेक्शन है। जो कंफर्म ये वेरिएंट देखने के लिए, उसके लिए यहाँ से जो सैंपल्स सिलेक्ट होते हैं वो बाहर जाते हैं जो कि एक्रेडिटेड लैब्स है इसके लिए, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। तो इसलिए हम कंफर्मिटी के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन यहाँ पे आया है कि नहीं। तो इसमें कोशिश यही रहेगी कि जो वहाँ यहाँ से सैंपल जाते हैं उनका रिपोर्ट जल्द से जल्द वहाँ से आए। आवाम के लिए क्या कहेंगे? ठीक है, आवाम के लिए मेरा यही अपील है कि कोविड यही है। अगर 0.5% ही हम देखें इसकी मोर्टेलिटी है या हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, लेकिन अगर हमारे तादाद पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो इन पेशेंट्स का तादाद भी काफ़ी बढ़ सकता है। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो सबको पता है, मास्क पहनना, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना, यही एक हमारे पास एक आला है जिससे हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर नवीद नज़ीर जो हमें बता रहे थे कि बेशक वैक्सीनेशन की प्रोटेक्शन हमारे पास है, लेकिन वो सिर्फ आपको बीमारी आगे बढ़ने से रोकेगी। इन्फेक्शन रोकने के लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि हम कोविड के कवायद व ज़वाबित जो हैं, SOPs हैं, उनको फॉलो करें अगर हमें ओमिक्रॉन की लहर से बचना है। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। DC श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने अवाम को खबरदार किया कि वो ओमिक्रॉन के खतरे को हल्के में न लें। एजाज असद कहते हैं कि अगर कोविड SOPs पर अमल नहीं किया गया तो श्रीनगर ओमिक्रॉन से दूर नहीं है। DC ने कहा कि कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है और रोजाना 100 चालान किए जा रहे हैं। फॉर्चुनेटली जो हमने सैंपल्स अभी तक जो भेजे हुए सैंपल हैं उनमें से कुछ रिजल्ट्स आने बाकी हैं कुछ के, लेकिन जिनके रिजल्ट आ गए हैं वो उसमें ओमिक्रॉन की कोई प्रेजेंस का सबूत नहीं है। लेकिन देखिए, वायरस का जो ट्रांसमिशन है ये कम्प्लीटली बॉर्डरलेस है। इसमें आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले के बीच में कोई बाउंड्री वाल नहीं खड़ी कर सकते। बाउंड्री वाल सिर्फ हर शख्स खड़ी कर सकता है अगर वो प्रिकॉशंस लेगा।
करगिल में कोरोना के पेश नज़र कोचिंग सेंटर्स और मजहबी रसूमात पर पाबंदी लगाने की मुखालफत की गई है। जमात उलमा इस्ना अशरिया करगिल ने यूटी इंतजामिया के जरिए हालिया पाबंदी को ज्यादती करार दिया। तंजीम के सदर शेख नाजिर मेहदी मोहम्मदी ने कहा कि इंतजामिया आवाम को परेशान करना बंद करे। उन्होंने हजरत ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैह की मुनासिबत से 7 जनवरी को जुलूस आज़ा निकालने का ऐलान किया है। अभी जोजिला भी बंद हो चुका है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे बाहर से आने वालों के लिए, वो है लेह एयरपोर्ट है। अगर आप लोगों को वाकई और हकीकी तौर पर आप लोगों को अगर कोरोना वायरस से अगर लड़ना है तो लोगों के साथ आप मजाक मत करें, आपको बाहर से आने वालों को रोकें। बाहर से ये जो बीमारी लेके आते हैं, अभी आप ताज़ा देखेंगे कुछ लड़कियों को हमारे यहाँ से बाहर लेके गए थे। हमने सुना कि सारे 27 गर्ल्स जो हमारे दिल्ली हार्ट में लेके गए थे, सारी लड़कियां जो है पॉजिटिव आया है। आप लोग खुद लेके जाते हैं केसेस वहां पर, इनको इस बीमारी में मुब्तला करके फिर करगिल में लाते हैं, फिर करगिल के आवाम को तंग करते हैं। पूरे खत्ते लद्दाख के हालात जो है इस कोविड-19 के सिलसिले में बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्यों हमारे सिर्फ मजहबी रसूमात पर पाबंदी और तालीम पर पाबंदी, मजहबी रसूमात को महदूद करने के चक्कर में ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर के सदर दफ्तर में आज सुबह आग की वारदात पेश आई। मिस्कीन बाग श्रीनगर में वाक़ LCMA ऑफिस की इस्टेब्लिशमेंट में आग की इस वारदात में मुलाजमीन का काफ़ी रिकॉर्ड आग की नज़र हुआ। सुबह 5 बजे के करीब एक कमरे से आग नमूदार हुई। फायर सर्विस अमले ने फौरी कार्रवाई की और आग को मजीद फैलने से रोका। मामले की जांच जारी है। इब्तदाई तौर पर बिजली शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। LPG सिलेंडर भी वहां देखे गए। सेक्रेटरी ऑफिस के एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में ये आग नमूदार हुई थी, तो उस सिलसिले में बर वक्त फायर डिपार्टमेंट को मुतल्ला किया गया और उन्होंने भी बर वक्त कार्रवाई आके ये आग बुझाने में वो कामयाब रहे। प्राइमा फेसी हमें पता चला है कि कुछ जो रिकॉर्ड्स थे वो पर्टेन करते थे जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट में और जो हमारे सर्विस मैटर्स में पर्सनल फाइल्स होती हैं, उस सिलसिले में वो कुछ डैमेज हुए हैं। उसका असेसमेंट अभी किया जा रहा है और पुलिस को भी हमने इन्फॉर्म किया है। मुलाजमिन की ज़्यादातर फाइलें थी। कोई पता कि कैसे आग लगी? अभी रात में तो वहाँ कोई रहता नहीं। फिलहाल ये हम बावर कर पाए हैं कि शायद इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से लगी है आग, बट चूँकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ही इसमें बता सकते हैं कि अल्टीमेटली इसका रीज़न क्या रहा है। श्रीनगर में तवेरा और सोमो ड्राइवर्स को श्रीनगर से अनंतनाग और दीगर इलाकों में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ड्राइवर्स के एक वफ्द ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर से मुलाकात की और इस मसले को हल करने के लिए ताउन तलब किया। ड्राइवर्स का कहना है कि महकमा ट्रैफिक उन्हें डलगेट या लाल चौक से जनूबी कश्मीर जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि वो कोर्ट की हिदायत के मुताबिक काम कर रहे हैं। सारे यहाँ पर तवेरा ड्राइवर है हम दलगेट से निकलते हैं अनंतनाग के लिए सर, हमको चलने नहीं देते सर। सबके पास गाड़ियों का फाइनेंस है, जो भी है घर में फाइनेंस की कमी है। हम रोजगार कमाते हैं, इसमें दिन को 500-600 रुपये कमाते हैं, घर चलाते हैं सर। उस वजह से हम SP साहब हमको बोलते हैं यहाँ पर अलाउ नहीं है, आप पांथा चौक जाइए। हम कहाँ से जाइए? हम श्रीनगर सिटी के सारे ड्राइवर हैं। बड़ी अच्छी बात है जो फॉर बेटरमेंट ऑफ आवाम हो, लेकिन जहाँ लोगों को मुश्किलात होंगी, जहाँ लोगों को और इनकन्वीनियंस होगी उसको देखना है। और जो ये बेरोजगार जवान अब इसमें लगे हैं, काम गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनको जो मुश्किलात हैं, उनको जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उनको उसमें ज़रा कंसिडर मैंने DIG साहब से, SSP साहब से, दूसरे जो अफसर हैं उनसे बात की। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान इनका मसला ठीक हो जाएगा। वक्त जिला डोडा के गुंदरा ब्लॉक में पुनियाला शियाल गढ़तर पंचायत के लोग आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं।
मुनासिब राब्ता सड़क न होने की वजह से यहां मरीजों को चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ता है। लगभग 15 किलोमीटर का फासला पैदल तय करने के बाद लोग रोड तक पहुंचते हैं। इमरजेंसी हालात में मरीज समेत रिश्तेदारों को बेहद जहनी और जिस्मानी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीज को चारपाई पर उठाकर 15 किलोमीटर का फासला पैदल तय करना कितनी मशक्कतों भरा काम है। डीडीसी काउंसलर एडवोकेट आसिम हाशमी ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि सड़क के लिए उन्होंने तजवीज़ भेजी है। डोडा डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊपर पहाड़ी इलाका है। यहाँ रोड न होने की वजह से जो लोगों में मुश्किलात पेश आ रही है, जबकि शाम को पुनियाला में एक पेशेंट इतना बीमार हुआ कि सीरियस हो गया, जिसको उठाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं था। कल भी मैं टीवी पे आप ही के चैनल ने एक खबर चलाई थी देसा साइड की, जहाँ पे 15-20 किलोमीटर लोग चारपाई पे एक पेशेंट को उन्होंने लाया था और बर्फबारी में वो चल रहे थे, जहाँ पे सड़क नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद मैं रात की बात आपको कहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक बलागुन्ना में एक इलाका आता है पुनियाला जिसको कहते हैं, वहाँ से भी लोगों ने कोई 15-20 किलोमीटर उस पेशेंट को चारपाई पे ला के डोडा के जिला अस्पताल में मुंतकिल किया। कुपवाड़ा जिले में 3 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसके नतीजे में बालाई इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़ता हो गया है। करना, केरन, मचल, जमागुंड, बंडमल समेत दर्जनों इलाकों के रास्ते बंद पड़े हैं। जिले के कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासर है। अगरचे इंतजामिया ने मैदानी इलाकों में सड़कों को काबिल आमदरफ्त बनाया है, ताहम लोग मुतालबा कर रहे हैं कि बालाई इलाकों की सड़कों पर भी बर्फ हटाई जाए। केरन और जुमागुंड के बालाई इलाकों के लोगों ने न्यूज़ 18 को बताया कि उन्हें काफी मुश्किलात का सामना है। मेन रोड से तो बर्फ उठाएगा, मैं लिंक रोड से बर्फ नहीं उठाएगा लोलाब में। अच्छा, लिंक रोड सब बंद है। बिजली का निजाम क्या इलाके में? बिजली का तो बस ये आधा घंटा रहता था, 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे बिजली का भी हो जाए। नहीं, कोई रोड को बर्फ उठाने वाला बिजली का तो नामो निशान ही नहीं है जुमागंड में। तो अभी लोग मकानों में बंद है, रास्ता कटा हुआ है, तो कुछ सहूलत ही नहीं है वहाँ पे जनाब। बर्फ हटाई गई है सड़क? बिल्कुल नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। घर जाना चाहते हैं, साथ में बच्चा है, वो किसी के घर छोड़ा है, ये डॉक्टर को दिखानी है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है सर घर जाने के लिए। बालाई इलाके हैं तो वहाँ पे काफ़ी बर्फबारी हुई है। उसके लिए मौसम की साजगारी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग ये रेस्टोरेशन का काम करते हैं या रोड का काम करते हैं, उनकी सेफ्टी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितना उन लोगों को जो आमदरफत के ज़राए फराहम करना है कि कहीं से भी अगर कोई ऐसी कॉल आती है जहाँ पे किसी को इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है, उसके लिए कंट्रोल रूम हमारे कायम है। हेलीकॉप्टर सर्विस का जो है इमरजेंसी सिचुएशन में हर जगह अवेलेबल होता है और वही हमें भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी उसकी रहेगी इन केस अल्लाह ताला ना करे कोई इमरजेंसी ऐसी आती है। क्योंकि करना और टंगधार के लिए तो ऑलरेडी हमारा अप्रूव्ड है, उसमें हमने ट्रायल रन के लिए भी रिक्वेस्ट की हुई है, लेकिन चूँकि मौसम साजगार नहीं है तो इस सूरत हाल में जब मौसम साजगार नहीं हो तो चाहे आप कोई भी रिक्वेजिशन दें जहाज़ की तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है जहाज़ के लिए उड़ान भरना। तो इस सूरत में जो है नज़दीकी हमारे हेल्थ सेंटर जो मैंने सीएमओ साहब को डायरेक्शन दी है। पुलवामा के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। बालाई इलाकों में 1 फुट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। संगरोनी और मुल्हका बालाई इलाकों में रात के दौरान ही सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया गया। मैकेनिकल डिपार्टमेंट और R&B की जानिब से ये काम किया गया। जिले में मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने 3 कंट्रोल रूम कायम किए हैं। अक्सर बालाई इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। पुलवामा में अगर देखा जाए ऑलमोस्ट 25 रोड्स को हमारे को क्लियर करने की ज़रूरत पड़ी, जबकि हमारे को 197 रोड जो है एक्शन प्लान में है, बट 25 रोड्स के हमारे को क्लियर करने की ज़रूरत पड़ी, जिनमें प्रायोरिटी 1 में ऑलमोस्ट हमारे को 44 किलोमीटर थे और प्रायोरिटी 2 में हमारे को 67 किलोमीटर थे, वो हमने सारी क्लियर कर दी और 100% हमारे को इस वक्त रोड जो है क्लियर है। 3 स्लो कंट्रोल पुलवामा में देखा जाए, एक हमारा मेन कंट्रोल पुलवामा है, दूसरा हमारे को संगरवानी में रखा हुआ है और तीसरा कंट्रोल हमने रखा हुआ है त्राल में रखा हुआ है। सब जिला त्राल के बालाई इलाकों में आज हल्की बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में कल से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से वाबस्ता किसानों में खुशी पाई जा रही है। इंतजामिया ने बर्फबारी से निपटने के लिए तमाम तर इंतजाम किए हैं। बालाई इलाकों में बर्फ हटाने के लिए R&B और मैकेनिकल महकमे ने मशीनरी को तैयार रखा है। बर्फबारी से हमें आम लोगों को
बहुत फ़ायदा है, खासकर जो ज़मींदार हैं और जो हार्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा आएगा। बड़े टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, पिछले 2-3 महीनों से बारिश या बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे। आज अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं कबूल की और आज बर्फ़ पड़ी है बालाई इलाकों में और मैदानी इलाकों में जो बारिश पड़ी है, इससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जो भी हमारे पास मैन और मशीनरी अवेलेबल है उनको हमने स्टैंड बाय रखा है और हमने ये प्रायोरिटाइज किया है कि हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पहुँचना है। इसका भी हमने एक एक्शन प्लान बनाया है। लोगों से हमारी ये गुजारिश रहेगी कि वो हमें उसमें ताउन करे, क्योंकि पहले हॉस्पिटल, मॉस्क, जो भी मतलब एसेंशियल बिल्डिंग्स है उनको पहले हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह सब लोगों को अपनी सहूलियत देंगे। बानीपुरा के गुरेज इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और शायर व अदीब मसूद सामुन शीना ज़बान व अदब की तरक्की और तरवीज के लिए काबिल कदर काम अंजाम दे रहे हैं। मसूद सामुन ने अपने एक दोस्त के इश्तराक से पहली मरतबा सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शीना में तर्जुमा करके शीना ज़बान के क़ारीन को एक अनमोल तोहफा दिया है। पेश है की रिपोर्ट। बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज के लोगों की मादरी जबान शीना है। गुरेज के अलावा द्रास और दीगर कुछ इलाकों में भी ये जबान बोली जाती है। साबिक डिविजनल कमिश्नर कश्मीर मसूद सामून का ताल्लुक भी गुरेज से ही है। एक अच्छे मुंतजिम होने के अलावा मसूद सामून उर्दू और शीना जबान के एक सुलझे हुए अदीब हैं, शायर भी हैं। मसूद सामून रोज़े अव्वल से ही शीना जबान और अदब के फरोग के लिए काम भी करते रहे हैं। मसूद सामून ने अपने एक साथी मोहम्मद नियाज मपनू के ताउन से पहली मर्तबा मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी की सीरत रसूल अकरम का शीना जबान में तर्जुमा करने का मुबारक काम अंजाम दिया। तो हमने सोचा कि शीना जुबान के लिए एक मुख्तसर सी एक और जामे किताब एक चाहिए सीरत की, तो इसका इंतखाब किया हमने। मौलाना अली मियाँ बड़े मशहूर और बड़े मुस्तनद आलिम हैं, तो इसमें कई साल लगे क्योंकि इसमें लिखना पढ़ना और किसी से मतलब इसका ये जो है कंपोजिंग वगैरह जो है वो भी खुद ही करनी पड़ी। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये काम अंजाम पाया। मेरा एक सपना था, एक बहुत देरीना ख्वाहिश थी। इस वक्त सिर्फ गुरेज इलाके में शीना जबान को बाज़ाब्ता तौर पर निसाब में शामिल किया गया है और इसका सेहरा भी मसूद सामून को ही जाता है, जिन्होंने शीना जबान का बाकायदा रस्मुल खत तरतीब देने में बेहद अहम रोल अदा किया। मसूद सामून ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने से पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी में 2 साल तक फारसी भी पढ़ाई। उन्होंने तालिब इल्मी के जमाने से ही शेर कहना शुरू कर दिया था। मसूद सामून की तसनीफात में गुलसितान सादी का तर्जुमा, शीना जबान का ग्रामर, उर्दू शेरी मजमुआ, सुखनहाय आशना, शीना मुहावरे और दीगर तसनीफात शामिल हैं। देखिए, जुबान हर एक कौम की पहचान होती है। ये बहुत पिछड़ी हुई जुबान है शीना, हालांकि शीना बहुत ही अहम जुबान है। ये वैदिक संस्कृत की बहन है, तो इसकी बहुत सारी खूबियां हैं जो दूसरी जुबानों में नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये है कि शीना जुबान फले फूले, लोग पढ़ें लिखें और मादरी जुबान में तालीम हासिल करें ताकि आगे बढ़ें, इसमें अदब की तख्लीक हो। मसूद सामून एक शीना अफसानवी मजमूए को मंजर आम पर लाने के अलावा शीना डिक्शनरी तरतीब देने में मसरूफ है। मसूद सामून को अदब के तई उनकी खिदमात पर कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बानीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने बुध के रोज फिरोजपुर पंजाब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के काफिले में सिक्योरिटी की चूक पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के इस्तीफे का मुतालबा किया। फ्रंट ने कहा कि पंजाब में सदर राज नाफिज होना चाहिए। षड्यंत्र रच करके प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी और प्रधानमंत्री अपने मुकद्दर से 125 करोड़ जनताओं की दुआओं से वो बच करके वहां से निकले हैं। ये साजिश जो रची गई है एक मुख्यमंत्री और वहां के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से रची गई है। ये बांधा फोड़ होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी महिला मोर्चा के कारकुनों ने जम्मू में महामृत्युंजय जाप का एहतमाम किया। वज़ीर आज़म की लंबी उम्र के लिए जाप किया गया।
बीजेपी महिला मोर्चा के कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। उन्होंने पंजाब के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म के खिलाफ मुबैना तौर पर साजिश रचने पर कांग्रेस की ज़ेर क़यादत पंजाब हुकूमत पर तनकीद की। प्रधानमंत्री जी की दीर्घ आयु के लिए किया है कि उनको आयु लंबी दे, जिस तरह से वो देश के काम कर रहे हैं। कल कांग्रेस की गवर्नमेंट ने और सद्बुद्धि दे उस कांग्रेस को, उस कांग्रेस के पदाधिकारियों को, उन सीनियर लीडरशिप को, कि वे अपने लोगों को समझाएं कि किस तरह से एक पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो थी वहाँ पे कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर की थी और वहाँ पर जो वहाँ का होम मिनिस्टर थे, और वो कहते हैं कि हमें पता नहीं, और 20 मिनट तक एक प्रधानमंत्री को पुल पे खड़ा रखा गया। ये एक सिक्योरिटी ब्रीच नहीं, एक बहुत बड़ा साजिश हुई है हमने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर। लद्दाख में 8वां अकबर लद्दाखी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। इस टूर्नामेंट में जिले की 40 टीमों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी मुकाबले में काउंसलर थिक्से ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अकबर लद्दाखी एक बहुत बढ़िया इंसान था जो हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे ओहदे पे बैठे थे, और वो अपनी लद्दाख के लिए बहुत सारे काम किए थे, जिसे हमारा हिल काउंसिल लाने में या बहुत सारे हमारे बहुत करे थे। हमारे SCDC रह चुके एक अफसर हमारे कम्युनिटी में रहे थे। उसी की यादगार में ये क्रिकेट टूर्नामेंट कई सालों से चल रहा था। विंटर में क्योंकि यहाँ पे काम होता नहीं है, क्योंकि अगर ये क्रिकेट खोलने से यूथ भी इसी में इंटरेस्ट लेता है कि ताकि यूथ कहीं इस विंटर में कहीं गलत रास्ते में ना जाए। अमेज़न पर ज्यादा फरोख्त होने वाली किताबों की फहरिस्त में प्रोफेसर रतन लाल हांगलू की किताब भी शामिल है। कश्मीर इल्हाक से पहले और बाद में के मौजू पर किताब ज्यादा बिकने वाली एशियाई किताबों की लिस्ट में कल सर फहरिस्त थी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर पावर डिपार्टमेंट डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने चीफ इंजीनियर कश्मीर एजाज असद के हमरा शिमाली कश्मीर कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। उन्होंने बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जिले में ज़ेर तामीर रिसीविंग स्टेशन के काम का भी जायजा लिया। चीफ इंजीनियर ने बताया कि हालिया बर्फबारी में महकमे के फील्ड अमले ने बेहतरीन काम किया है। ये जितने भी सब स्टेशन ये जो हैं या रिसीविंग स्टेशन हैं, ये एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लीशन में हैं। और उसमें जैसे आपने हायामा का बताया, उसमें एक छोटा सा स्ट्रेच बचा हुआ है जिसमें कुछ ROW इश्यूज़ थे, बाकी इश्यूज़ थे, उनको टैकल किया जा रहा है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बहुत जल्दी इसको हम चार्ज कर लेंगे, और बाकी भी एडवांस स्टेज में उनको भी फॉलो किया जा रहा है। इन्हें कहा कि तरसीले लाइनें दरख्तों पे है, इस पर एक स्कीम पे काम चल रहा है, तो मैक्सिमम ये रिप्लेस किया जाएगा विद प्रॉपर डिज़ाइन सिस्टम। दूसरा जो आप कह रहे हैं 24 घंटे, इसमें लोगों की भी कोऑपरेशन चाहिए। मीन्स वो एज पर द एग्रीमेंट ना हीटर जला सकते हैं ना बॉयलर लगा सकते हैं। बट आई अंडरस्टैंड कश्मीर में गर्म पानी करना, तो मैं नहीं बोलूँगा 100%, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिजली ही इस्तेमाल करते हैं पानी गर्म करने के लिए। एक है और बिजली का मुनासिब इस्तेमाल। शोपियां में नौजवानों का नशे की तरफ रुझान तेजी से बढ़ रहा है। लोग मनशियात के रुझान में इजाफे से फिक्रमंद है। बटापुरा में म्यूनिसिपल बिल्डिंग की दुकानें खुलेआम मनशियात का मरकज बनती जा रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के बहुत ही शुक्रगुजार है। शुक्रगुजार इसलिए हैं कि वो हमारे मसलों को उजागर करने में पेश रहती है। तो इस चैनल की वसादत से हम ये बात कहना चाहते हैं, थोड़ा सा संजीदगी दिखा के इसको, जो ड्रग पेल्टर है उसका काबू पाना तो बहुत ही आसान है, मगर जो इसके सप्लायर है 4, 5, 10, 20 आदमी कितने भी होंगे वो, तो इनको हम अपने शोपियान को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। आज भी हमें मतलब बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं कि ये जो हमारा भटपोरा है बस स्टैंड है, आपने खुद भी देखा कि यहाँ कितने सिरेंजेस फेंके हुए हैं, कितने बोतलें फैली हुई है और शराब की बोतलें है। ये हमारे लिए एक मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे यूथ के लिए, क्योंकि हमारे यूथ को मतलब ख़त्म किया जा रहा है। मेरी ये अपील है कि तमाम लोगों से एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आगे आए। आकिपुरा कुलगाम के बाशिंदों ने मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में महकमे बिजली की नाक़िस कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज किया।
लोगों ने बताया कि इलाके में बिजली की तरसीली लाइन और खंभे बोसीदा हो गए हैं। इन हालात में कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। लोगों ने बोसीदा तरसीली लाइनों खंभों को तब्दील करने पर जोर दिया। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने वादी कुंड इलाके का दौरा किया और बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो इलाके के लिए अशाए ज़रूरिया, पानी, बिजली और तिब्बी सहूलियात बहम पहुंचाने के इक़दाम करें। भट्ट ने R&B और मैकेनिकल महकमों को हिदायत दी कि वो इलाके की सड़कों पर बर्फ हटाने के लिए अफरादी क़ुव्वत के अलावा मशीनों को काम पर लगाए। बडगाम के दूर दराज इलाकों में बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ जमा होने से लोग अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। जिला इंतजामिया ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के AE के मुताबिक उन्होंने जिले के सभी दूर दराज इलाकों में मशीनें भेजकर सड़कों से बर्फ हटाई है। गुज़श्ता 3 दिनों से जारी बर्फबारी की वजह से डोडा के दूर दराज इलाकों में तकरीबन 2 से 3 फुट बर्फ जमने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना रहा है। राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। जिला इंतजामिया ने दूर दराज इलाकों में राब्ता सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। लोगों ने पानी और बिजली बहाल करने की मांग की। भद्रवाह में शदीद बर्फबारी के बाद बैन रियासती भद्रवाह, चंबा और भद्रवाह बनी कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। ADC भद्रवाह ने पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदा गिरने की एक एडवाइजरी जारी की। 3 रोज से जारी मुसलसल बारिश और बर्फबारी ने हुक्काम को अहम राब्ता सड़कों को बंद करने पर मजबूर कर दिया। किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके मड़वा वार्ड 1 में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने का मुतालबा किया गया। लोगों का कहना है कि शदीद बर्फबारी के सबब उनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। आमदरफ्त मुअत्तल होने से मरीजों की जान जाने का खतरा लाहक होता है। लोगों ने फौरी सर्विस शुरू करने की अपील की। जिला भुंज के ज्यादातर इलाकों में बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD इरशाद हुसैन ने कहा कि जिन इलाकों में शदीद बर्फबारी की वजह से बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है वहां महकमे के लोग बहाली के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली का लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर जलने की वाकयात में इजाफा हुआ। बर्फबारी की पेशगोई को लेकर तहसीलदार पांपुर ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। बर्फबारी से निपटने के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। बर्फबारी के दौरान मदद के लिए इंतजामिया ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बेलिसा और ठाठरी सब डिवीजन में मुसलसल बर्फबारी की वजह से बेशतर अंदरूनी रास्ते बंद होकर रह गए। पानी और बिजली की अदम फराहमी ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा किया। इंतजामिया बिजली की फराहमी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। SDM अथर अमीन जरगर ने कहा कि हर तरह के हालात से निपटने के लिए इंतजामिया कमरबस्ता है। DDC मेंबर न्यू पुलवामा अब्दुल अजीज मीर ने कहा कि पंचायती निज़ाम से दही इलाकों में रोजगार के वसाइल पैदा हुए। 3 दर्जे पंचायती निज़ाम में PRIs और BDC के अलावा DDC वजूद में आने से दही इलाके तरक्की की राह पर गामजन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती हलकों में नौजवानों के लिए खेल कूद के मैदान कायम किए जा रहे हैं।